क्या मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूँ? क्या मैं तुम्हें धोखेबाज दिखाई देता हूँ? क्या वो तुम्हें अय्याश दिखाई देता है? क्या मैं तुम्हें पियक्कड़ दिखाई देता हूँ? इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह के कुछ और कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आप इस वीडियो से सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्या मैं तुम्हें झूठा दिखाई देता हूँ? इंग्लिश में आप इसे कहेंगे, डू आई लुक लाइक अ लायर टू यू? डू आई लुक लाइक अ लायर टू यू? डू आई लुक लाइक समथिंग टू समवन? ऐसे बोलना है। अब आप अगला बता सकते हैं, डू आई लुक लाइक अ चीटर टू यू? डू आई लुक लाइक अ चीटर टू यू? देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क। क्या वो तुम्हें अय्याश दिखाई देता है? डज ही लुक लाइक अ रेक टू यू? डज ही लुक लाइक अ डिबॉची टू यू? ऐसा इंसान, यू नो व्हाट अय्याश मीन्स राइट, उसको हम इंग्लिश में रेक या डिबॉची कह सकते हैं। डज ही लुक लाइक अ रेक टू यू? डज ही लुक लाइक अ डिबॉची टू यू? क्या मैं तुम्हें पियक्कड़ दिखाई देता हूँ? डू आई लुक लाइक अ ड्रंकर्ड टू यू? डू आई लुक लाइक अ ड्रंकर्ड टू यू? ड्रंकर्ड इज अ पर्सन हु गेट्स ड्रंक वेरी ऑफन। डू आई लुक लाइक अ ड्रंकर्ड टू यू? तो बस इतना सा बोलना है, समवन लुक्स लाइक समथिंग टू समवन। कोई दिखता है कैसा? डू आई लुक लाइक अ लायर टू यू? डू आई लुक लाइक अ चीटर टू you? Does he look like a rake to you? Do I look like a drunkard to you? You can make several other sentences just like this. It's really important for you to practice making more and more sentences to be more likely to be able to use what you learn when you actually need it. उसे दिन दहाड़े पीटा गया। जब भी हमें ऐसा कहना होता है ना कि दिन दहाड़े कुछ हुआ सबके सामने, इंग्लिश में आप एक फ्रेज यूज कीजिए, in broad daylight. He was beaten up in broad daylight. He was beaten up in broad daylight. यानी दिन दहाड़े, सबने देखा, in front of everyone. Everyone was there to witness what was happening. The bank was robbed in broad daylight. When the bank was robbed, everyone was there. It happened during the daytime. The bank was robbed in broad daylight. The child was kidnapped in broad daylight. In broad daylight. Someone stole my bike in broad daylight. When something happens in broad daylight, it means it happens during the day when people are around. People can see what's happening. It's daytime. So something happens in broad daylight. वो हमेशा एक कदम आगे रहता है. How are you going to say this in English? You can say, he is always a step ahead. He's always a step ahead. A step ahead. आपको हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए. You should always be a step ahead. I like to be a step ahead. He knows how to stay a step ahead. Practice जरूर करनी चाहिए अलग अलग sentences बनाकर. I'm not asking you to write any sentences. All you're supposed to do is make a few sentences by speaking. Just speak sentences. जैसे अगर इसकी practice करनी है तो आप कैसे बोल सकते हैं? He's always a step ahead. You should always remain a step ahead. Why don't you always be a step ahead? You should always stay a step ahead. You should have stayed a step ahead. I wish he were a step ahead. I wish I were a step ahead. इस तरह से मैं कभी उनको पीठ नहीं दिखाऊंगा, मतलब मैं हमेशा उनका साथ दूंगा, उनसे नजरें कभी नहीं फेरूंगा, ये मतलब है। इंग्लिश में इसे कैसे कह सकते हैं? I'll never turn my back on them. I'll never turn my back on them. Let's see more examples. He has turned his back on me. यानी उसने मुझसे मुंह फेर लिया है, मेरी सपोर्ट करने से मना कर दिया है, हेल्प करने से मना कर दिया है। You should not turn your back on your mother. अपनी मदर से मुंह नहीं फेरना चाहिए आपको, उनको पीठ नहीं दिखानी चाहिए। You should be there whenever she needs you. When you turn your back on someone, it means you refuse to help that person when he actually needs you. तुम दोनों का चल क्या रहा है? When two people are making a lot of noise or whatever, now you're confused about what's happening, you can say, what are you two up to? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप दोनों की क्या खुसर-फुसर चल रही है? जब भी इस तरीके से कुछ बोलना हो, आप बोल दो what are you two up to? किसी एक से बोल रहे हैं तो आप बोलो what are you up to? मुझे पता है तुम दोनों का क्या चल रहा है। I know what you two are up to. I know what you two are up to. इन दोनों का हमेशा कुछ चलता रहता है. These two are always up to something. बारिश का बहाना मत बनाओ. जैसे कोई ऑफिस नहीं आया तो वो बोल रहा है बारिश हो रही थी. नहीं 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 नहीं, बारिश का बहाना मत बनाओ. Don't use the rain as an excuse. Don't use the rain as an excuse. More examples. Don't use mom as an excuse. जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा है मैंने होमवर्क नहीं किया, मम्मी ने मना कर दिया था, तो पापा बोल रहे मम्मी का बहाना मत बनाओ. Don't use mom as an excuse. Don't use your poverty as an excuse. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ. No.
डोंट यूज़ योर पॉवर्टी एज एन एक्सक्यूज़। गरीब पैदा होना हमारे बस में नहीं है। गरीब पैदा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मरने में बहुत बुराई है। यू मस्ट डू समथिंग। जिसको कुछ करना होता है वो कर ही लेता है। He doesn't blame anything. Don't use me as an excuse. मेरा बहाना मत बनाओ कि मैंने मना किया था या मैंने कुछ कहा था। Don't use me as an excuse. मैं पूरी तरह थक गया हूँ। सो जाओ, सब थकान उतर जाएगी। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई नशे में है तो सोने के बाद उसका नशा उतर जाएगा। कोई थका हुआ है तो सोने के बाद उसकी थकान उतर जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कोई थोड़ा बीमार है तो सोने के बाद उसका बुखार उतर जाएगा। जब कोई चीज़ सोने से ठीक हो जाए तब आप एक फ्रेजल वर्ब यूज़ कीजिए, ये वाला। पहले तो हम क्या बोलेंगे, मैं पूरी तरह थक गया हूँ। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। सो जाओ, सब थकान उतर जाएगी। जस्ट गो टू बेड, यू विल स्लीप इट ऑफ, यू विल स्लीप इट ऑफ। यू स्लीप समथिंग ऑफ, इट मीन्स यू हैव समथिंग, you are in a situation. Maybe you have a hangover, or you are drunk, or you have a fever, and you just go to sleep, you wake up and everything is fine. It means you slept it off. जैसे let him sleep off his hangover. वो नशे में है, सोने दो उसे, उसका नशा उतरने तो सो जाएगा, नशा उतर जाएगा। Let him sleep off his hangover. Let him sleep off his hangover. So you sleep off something. आप किसी चीज़ को स्लीप ऑफ करते हैं, मतलब सो कर उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि नशा या थकान या कोई बीमारी, दर्द एक्सेट्रा, या टेंशन में भी। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को रिमार्केबली इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।